Hello students of class 9th. Today we are going to solve the worksheet of class 9th motion chapter. कुछ आपके पास ये नोट्स होगा जिसमें हमने आपको ऐप में सॉल्व किया है. इसके क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 पेज नंबर के न्यूमेरिकल्स को आपको हमने बोला था कि आप सॉल्व कर लीजिएगा. आशा करते हैं कि आपने सॉल्व किया भी होगा. So here we are going to solve each questions and you can match with your notebooks. First question: a particle is moving with a circle of diameter 5 meter. Calculate the distance covered and the displacement when it complete 3 revolution. That is the circular path, radius 5 meter. Calculate the distance covered and the displacement when it complete 3 revolution. 3 revolution को जब complete कर लेगा तो how much distance and displacement shall it cover? So one revolution that means the circumference of the circle, that is 2 pi r. So how much? 3 revolution में क्या हो जाएगा? 3 into 2 pi r. So 3 into 2 into 22 by 7, and what is the radius? 5. So you can solve them and you get how much distance shall it cover in the 3 revolutions, and what is the displacement. You know that अगर particle moving from the A complete 1 revolution, 2 revolution and 3rd revolution, but the final position is what? A. That's why the displacement is what? 0. That is the first question of your page number 4 worksheet. Distance यहाँ पर हो जाएगा 3 बार ट्रेवल किया तो 3 into 2 pi r and the displacement 0 हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है. क्वेश्चन नंबर 2. A body thrown vertically upward reach a maximum height h. कह रहा है पार्टिकल को आपने फेंका ऊपर की तरफ और उसने अटेंड किया मैक्सिमम हाइट h को और वापस आ गया उस पृथ्वी पर, यानी उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई अंतर नहीं है. दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा. जब तक कि उसकी पोजीशन में बदलाव नहीं हो तब तक डिस्प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होगा? सो h गया h आया, क्या हो जाएगा? 2h. अगर h दिया रहता 5 मीटर तो हमें आप इजीली फाइंड करके बता देते कि 10 मीटर उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा. दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3. A body travels a distance of 15 meter from A to B and moves with the distance of 20 meter at the right angle to A and B. Calculate the total distance traveled and the displacement. Listen, if from particle A to B, and how much distance travel? 15 meter. From B to with a right angle. There are question make A to B and then moves a distance of 20 meter at right angle. Let the point C. We need to find what how much distance travel by the body. कितना travel किया? तो A से B आने में AB और B से C आने में BC, और 15 meter plus 20 meter. That's why the 35 meter is the distance traveled by the body to moving from A to B and B to C. But what about the displacement? Displacement is always the shortest length between the any two position. And अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आसान प्रोसेस है कि उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दीजिए. एंड लुक एट द पिक्चर. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें आप जानते हैं कि इसको हम लोग बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस कहते हैं. हाइपोटेनस इक्वल टू व्हाट? रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. दैट्स व्हाई द रूट अंडर 225 प्लस 400 and that's why 625 and that's why the 25 मीटर. आप ये भी जानते हैं कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है जबकि डिस्टेंस 35 मीटर है. तो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा. छोटी लेंथ होती है किसी दो पोजीशन के बीच में. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 4. An object is moving with a circle radius r. Object move कर रहा है सर्कुलर पथ पर जिसका रेडियस है क्या? r. Calculate the distance and displacement. आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है. When it complete half the circle and when it complete the one full circle. सो हाफ अ सर्कल, फुल सर्कल, हाफ अ सर्कल. अगर यहां से मान लेते हैं कि पार्टिकल मूव करना शुरू किया
आधा रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया, या यहां से मूव करना शुरू किया और यहां तक के आधे रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया। सो हाफ ऑफ सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस दैट इज द 2 पाई r by 2, सो पाई r। अगर r का यहां पर हमको वैल्यू दिया रहता तो वी कैन putting the value of the pi 22/7 and the r and we can obtain a numerical value of that expression, but pi r यहां पर इसका हो जाएगा। what about the displacement? The straight line between the initial position and the final position always gives the minimum distance and that is the displacement. So a से b को हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, एंड डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r प्लस r क्या 2r। क्वेश्चन नंबर 5, an object travels the 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? 16 meter यानी and 16 meter दो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है and the time taken was the 4 second and the 2 second. The total distance traveled by the body and the total time taken. So average velocity is the 32 by 6. You can solve them. The 6 5 are 30. 6 5 are 30 and 6 3 are 5.33 meter per second. So question number 5 and the question number 6. So question number 6. Vishnu swims in a 90 meter long pool. He covered 180 meter in 1 minute by swimming from the one end to other end and the back along the same straight path. Find the average speed and average velocity. 90 मीटर का स्विमिंग पूल है जिसमें वह एक बार गया और सेम पथ पर वापस आया। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 180 मीटर, एंड कितना टाइम लिया उसने। सो टाइम विल बी टेकन बाय देम 1 minute. So 1 minute that means the 60 seconds. So 0 6 3 यानी 3 meter per second. And what about the velocity? So velocity becomes 0 because the displacement, here is the displacement, A से दूसरे छोर तक गया और वापस इस छोर से इसी छोर पर आ गया, यानी the difference between the position of the body this does not change, that's why the displacement is 0 and the velocity is also 0. So क्वेश्चन नंबर ये था आपका 5, 6 था क्वेश्चन नंबर ये आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं। इन लॉन्ग डिस्टेंस race the athlete were expected to take 4 rounds of the track such that the line of finish was same as the line of start. Suppose the length of the track was 200 meter. एक ट्रैक पर मूव कर रहा है, जहां पर उसका शुरुआत है वहीं पर उसका क्या है, एंड है, और उसको 4 राउंड उसका ट्रैवल करना है। और ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है, 200 मीटर है। 4 राउंड लेगा तो 200 मीटर मतलब 800 मीटर। सो डिस्टेंस वाज व्हाट, 800 मीटर उसने ट्रैवल किया जब 4 राउंड मारा तो। लेकिन इनिशियल से जब फाइनल पर पहुंच गया 4 राउंड मारने के बाद तो उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट वाज 0। सो क्वेश्चन नंबर 7 covered by the athletes. What is total distance covered by the athletes? Total distance covered by the athletes is 800 meter. Question number 2. What is the displacement of the athlete when they touch the finish line? 0. Is the motion of the athlete uniform or non-uniform? Always the circular motion is non-uniform motion. Is the displacement of the athlete and the distance will be at the end of the race equal? No, that becomes not equal. Question number, now we are talking about the question number 8. That is the question number 7. Question number 8. Starting from a stationary position, Bhuvan pedals his bicycle to attain the velocity of 6 meter per second. So u0. Why 0? Because start किया उसने bicycle को रेस्ट से and attain a velocity of 6 meter per second. That is the final velocity 6 meter per second. How much time taken? 30 second. In the second case आपको बताया कि अगर सेगमेंट में मोशन हो रहा है
तो जो लास्ट फर्स्ट सेगमेंट का फाइनल पोजीशन होगा वह उसका सेकेंड सेगमेंट का इनिशियल पोजीशन होगा, एंड व्हाट वेलोसिटी ही अटेंड द 4 मीटर पर सेकेंड एंड हाउ मच टाइम विल टेकन द फोर्स, हाउ मच टाइम द 5 सेकेंड. So here is the expression v minus u by t, that means the 6 meter 6 minus 0 by 30, 6 by 30 and 1 by 5, that is the 0.2 meter per second square. Here is what is the expression v minus u by t, that means the 4 minus 6 by 5 यानी minus 2 by 5 यानी 0.4 minus 0.4 meter per second square. Here is the negative sign indicate about that. This is the retardation, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मंदन. यहाँ पर उसकी वेलोसिटी में कमी आई, इनिशियल वेलोसिटी 6 था, फाइनल वेलोसिटी 4 हो गया, तो यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट अबाउट द रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन हो रहा है यानी इंक्रीमेंट हो रही है उसकी वेलोसिटी में, और रिटार्डेशन का मतलब है कि डिक्रीमेंट हो रही है उसकी वेलोसिटी में. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Amit is moving his car with a velocity of 45 km per hour. उसकी वेलोसिटी है 45 km per hour. How much distance will he cover in 1 minute? केस फर्स्ट केस में कह रहा है 1 minute, that is equals to 60 second, and सेकेंड केस में कह रहा है 1 second. First convert into meter per second, 5 by 18 यानी 2 to 5 by 18. So first केस में जो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, सो वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज द 225 by 18 into 60 सेकंड. 6 3 जा 6 10 जा यानी 2250 by 3, 7 3 जा 7 5 जा 0, 750 meter, that is the distance traveled by Amit in 1 minute, that is the 60 second, and the what distance he traveled in the 1 second. So 1 second में कितना उसने ट्रैवलिंग किया, इसको देख लीजिए. तो 225 by 18 into 1 यानी 225 by 18. You can solve them into decimal form and then you can get the solution of that equation. That is the question number 9. We are going to solve the question number 10. So question number 10. The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. Initially odometer का क्या था, 2000 मीटर था. फाइनल जब उसने ट्रिप कंप्लीट किया तो 2400 मीटर. दैट्स मींस द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल that is 400 meter. Sorry, that all the value is given into kilometer. 400 kilometer. How much time taken? 8 hours. So 400 kilometer and 8 hours, that is the 50 kilometer per hour. Total distance traveled by total time taken, and you can obtain the average velocity, average speed that is 50 km per hour. आपको ये भी कह रहा है कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, आपके लिए आसान बात है. 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. An electric train moving with a velocity of 120 km per hour, how much distance will it move in 30 seconds? 30 सेकेंड में कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 120 किलोमीटर पर आवर. सो 120 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द वेलोसिटी और स्पीड. सो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा. सो फर्स्ट इज कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. 120 इनटू 5 by 18, 6 3 जा and 620, 100 by 3. So distance equal to what? Speed into time. Speed equal to 100 by 3, and what about the time? 3
यानी 1000 मीटर. You can also convert into kilometer, that is 1 kilometer. That is question number 11. Now question number 12. So question number 12, a body is moving with a velocity of 15 meter per second. If the motion is uniform, what will be the velocity after 10 second? 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है तो. सो प्रत्येक टाइम सेगमेंट में वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा. तो अगर उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. टाइम कितना है 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के बाद वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका होगा तो 15 मीटर इंटू 10 यानी 150 मीटर. तो इसमें उसकी वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं. इक्वल डिस्टेंस 15 मीटर. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13, a train travels some distance with a speed of 30 km per hour and return with the speed of 45 km per hour. Calculate the average speed of the train and return with the velocity of 45 km per hour. Okay. So question number 13 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस विद a speed of 30 km per hour and return with the speed of 45 km per hour. With the speed of 45 km per hour. Calculate the average speed of the train. इस क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं है और नहीं डिस्टेंस दिया है. सो एवरेज स्पीड इसमें आप दो कंसेक्यूटिव के लिए आपको हम बताए थे. दो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस को अगर ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं 2v1 v2 by v1 plus v2. First it convert into meter per second because we also always solve the questions, always solve the problem solutions into SI unit system. And 30 by 5 by 18 and that's why 150 by 18. And second 45 into 5 by 18 that is 225 by 18. So 2 into 150 by 18 into 225 by 18 by v1 plus v2 and 150 by 18 plus 225 by 18. Now solve the 9 यानी 150 into 225 by 18 into 9. नीचे हो जाएगा 18 LCM 150 plus 225. So 150 into 225 by 18 into 9 into 18 by what is the addition 5 7 3. 18 से 3 चला जाएगा एंड 3 3 जा 53 जा 3 से ये कट जाएगा 3 7 जा 3 5 जा यानी 50 into 75 by 375. 5 10 जा एंड 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 75 से 75 चला जाएगा. दैट इज द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 30 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड. इसको आप किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 10 into 18 by 5 2 जा यानी 36 किलोमीटर पर आवर. आपको 10 मीटर नहीं वहां दिखाई दे रहा हो तो 10 मीटर पर सेकेंड आपको एवरेज वेलोसिटी आया. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है लेकिन इसको 18 by 5 से हम लोग उल्टा कर देते हैं. अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 36 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बिटवीन द A to B. आप इसको आपको इस फॉर्मूला को बताया था कि दो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हो कोई पार्टिकल विद सर्टेन वेलोसिटी तब आप एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे. अगर 3 होगा तो 3v1 v2 by v1 plus v2 plus v3 नहीं v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. इसका ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12.
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मूविंग इन अ स्ट्रेट A train 100 meter long moving on a straight level track passes a pole in 5 seconds. Find the speed of the train. 100 मीटर लॉन्ग वो ट्रेन है, एक पोल को पास कर रहा है कितनी देर, पुल को पास कर रहा है 5 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन 100 मीटर का है बाय 5 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। तो 100 मीटर तो उसकी अपनी लेंथ है और 5 मीटर प्लस में एक ब्रिज है, तो टोटल उसकी लेंथ कितनी हो गई, कितना डिस्टेंस चलना है 600 मीटर का है, कितना टाइम लेगा। सो 600 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है और जो उसकी स्पीड है, सो स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 600 मीटर एंड स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड यानी 30 सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ए कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ, ए कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। आधे समय में उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। एंड द सेकेंड हाफ विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और आधे समय में वो जो स्पीड है उसका 60 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो कह रहा है आपको कि एवरेज स्पीड निकालिए। सो यूज द फॉर्मूला q v1v2 by v1 plus v2। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसान होगा। सो 40 into 5 by 18 यानी 200 by 18, एंड इसको कर दिएगा तो 16 into 5 by 18 यानी 6 3 जा 6 10 जा यानी 50 by 3। So 2 into 200 by 18 into 50 by 3 by 200 by 18 plus 50 by 3। 2 9 जा यानी 200 into 50 by 27। नीचे अगर करते हैं तो इसका एलसीएम 18। 200 plus 6 3 जा यानी 300। That's why 200 into 50 by 27 into 18 by 500। 10 1 0 से 1 0। 9 3 जा 9 2 जा यानी 40 by 3 यानी 13.33 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल और ऑफ द ट्रेन। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम आपको सॉल्व कर दिए हैं। क्योंकि वीडियो का साइज लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में हमको दिक्कत होती है। 15 क्वेश्चन के बाद एक अगले सीरीज में आपको हम बाकी इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप इसके प्रॉब्लम को अवश्य बनाइए। आप एनसीईआरटी के भी इंटेक्स क्वेश्चन के प्रॉब्लम को बनाइए, आपके नोट्स में भी वो क्वेश्चंस दिए गए हैं और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, उसको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।